I'm your host for today's orientation session. I'm glad that we have with us Kamran Adil Saab and SSP Arif Rao as well to help start this orientation session. This training was designed primarily based on some of the findings by Kamran Adil. It was an effort in combination with Ziauddin University and GNMI. And we have with us, I think, representatives from GNMI as well. So we'll just do I guess, a brief round of introductions. Then we will start a little bit about what the program is. This training is designed for crisis negotiation. And then from there, we will move forward, inshallah, to talking about the course design and the trainer. And I would like SSP Arif Rao to also, towards the end, kind of talk a little bit about how he's going to carry on this training. And then we'll have a technical explanation by Furqan and the team for anybody to understand the platform. I think एक जो बड़ी challenges है चीज़ है इस platform को समझना, so that's why we have that session, and then we'll have a pre-assessment towards the end, and hopefully then we can inshallah connect back again starting Tuesday and have our back-to-back classes at this time. Without further ado, if I may, I will go ahead and introduce myself, and then I'll move forward to the team in GNMI if they are available here. And then we can go ahead and start this session so that you get to know members of our team. And then, of course, then I'll introduce Kamran Adil as well, and maybe he can talk a little bit about the gap analysis and what he did. And I'll share some of the slides from his gap analysis before we get into the course design. So without further ado, my name is Sayed Muaz Shah. I'm basically the director at the Center for Human Rights at Ziauddin University. I'm in the Faculty of Law, Politics, and Governance. So we joined with GNMI for this project, which is known as the Adil Project. It's a series of online specialized trainings we designed in coordination with the United States State Department, INL. There were four main thematic areas we covered, or we have designed courses for. One is women leadership, another is self-efficacy, and then specialized training modules on crisis negotiation, one at strategic level, and then also another course on a tactical level for junior officers. So the course that you are currently in right now, this is for the senior officers for strategic crisis negotiation. Is there anyone from the GNMI team? Hosnain, would you like to introduce yourself? I think we have Bilgami Saab as well, if he is on the call. Sure. Thank you. So my name is Hasnan Raza, and I am the program director at GNMI. GNMI is basically Global Neighborhood for Media Innovation. And just as Mas said, we have collaborated together to, build this kind of a virtual training program for INL and for criminal justice sector, basically. So we had previously conducted a training on self-efficacy. That was first training for us, and we did it with judiciary. And this is the second round. Second training basically on crisis negotiation strategic, which we are implementing in collaboration with Sindh Police and AJK Police. So that's my introduction, and we'll keep on talking as we move on. Thank you. I believe we have Furqan as well. Maybe Furqan, you can give us a little introduction about yourself. Assalamu alaikum. This is Furqan Hamid from GNMI. मैं यहाँ पे GNMI में कम्युनिकेशन ऑफिसर हूँ और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ. आप लोगों के साथ जो भी कम्युनिकेशन या टेक्निकल इश्यूज जो भी आ रहे हैं वो सारे मैं ही डील करूँगा आगे भी और अभी भी. Thank you. Thank you. I think on Muhammad Umar, I think आप भी कॉल पे हैं. You want to introduce yourself? जी अस्सलाम वालेकुम everyone. This is Muhammad Umar. I'm by profession advocate. और मैं आपको एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर GNMI में आपकी सपोर्ट करूँगा. Thank you. Acha, I think Sana, you're here. If you'd like to introduce yourself. Assalamu alaikum. I'm Sana Maksi. I'm student of Ziauddin University and training assistant of this Adil project. Thank you. Okay, that's from our side of the team, and this is basically who we will be. Bilgami Saab, I don't know if he's here. I don't think so. If you are Bilgami Saab, I don't see you on the.
He's not in yet. Okay, he's not here. Okay, but he also may join throughout the session as we go. He's also with the program management team with GNMI. With that, let us move forward with today's discussion. So I can introduce our esteemed guest here, particularly in respect to our the DIG Kamran Adil, who has actually joined us as well. Let me go ahead and try to capture the screen here. There we go. Okay, please let me know if you can see my screen. Yep. Okay. So this is, as spoken earlier, GNMI, a registered NGO in collaboration with Ziauddin University Faculty of Law, designed this Adil project in order to do an online training system that we can eventually duplicate and multiplicate with all the different criminal justice institutions in Pakistan. The idea of this training obviously is, as everybody knew and experienced during the COVID time period, a lot of training and education had gone online. So we wanted to systemize this element of training on an online platform that can be easily accessible to different institutions throughout Pakistan and have multiple beneficiaries. And as a result of that, we focused in on 3 key areas, as I mentioned earlier: crisis negotiation, both on a strategic and tactical level. Self-efficacy ka bhi ek topic tha. In fact, we've just completed the first session, first iteration of that earlier last week, and leadership and resilience, primarily with women leadership. The goal of the project obviously is to advance the capacity of Pakistan's criminal justice system, contributing to the strengthening the reliance of its institutions, advancement of women and public confidence in the rule of law through virtual learning. And so this is designed in a way that in the future, agar kabhi bhi lockdown hua, in fact, aajkal to, I don't know if everybody has been focusing on the news, but China mein to wapas lockdown start ho gaya, wahan pe ek alag wave aa raha hai. So these tools will be kind of assistive to keep our strategic readiness of our institutions and the personnel within them, from the police to the judiciary to narcotics to FIA, up to par. And online learning and online training is a tool that we're focusing on. Though we are going to eventually develop this into a hybrid model in our next phase, but for this phase that you're joining, this first iteration will be purely online. When we speak about crisis negotiation, what we first did, we conducted a gap analysis to understand कि असली में पाकिस्तान में current situation है क्या, और उसी को हमने जो है DIG Kamran Adil साहब को requested him to analyze this. If those of you are not aware, DIG Kamran Adil is a serving police officer currently stationed in Lahore. He's got an LLB in honors in Sharia and law, and he's also got a Chevening scholar from Oxford in law as well. He's got almost 18 years of service. He's a lead trainer for ICRC, UNODC, National Police Academy, and so forth. And he's published multiple articles and publications on police education and training. We're very grateful for his expertise to be here. Sir, if you want, you can actually go. I've gotten the elements of your gap analysis here, if you would like to share, and I can then move forward on the slides accordingly. Thank you very much, Moaz. Indeed, it is a pleasure to talk to police officers and especially the academia. I'll go in Urdu because I want to engage the participants. काफी देर से बेचारे वेट कर रहे हैं, and I know मगरिब की नमाज का टाइम भी हो रहा है, लाहौर तो हो गया है, तो बिल्कुल हम वो तैयार वुजू करके बैठे हैं. For a very long time we have been trying कि यूनिवर्सिटीज आगे आए और वो हमें हेल्प आउट करें. पुलिस की ट्रेनिंग रिजीम के बहुत सारे इश्यूज हैं, उसमें काफ़ी सारे गैप्स हैं. कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन पे हम बिल्कुल कोई ट्रेनिंग ऑफर ही नहीं करते, लाइक मेजर क्राइसिस मैनेजमेंट. कई क्राइसिस होते हैं हमारे सामने, हम डेली देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ जाना पड़ता है. उसके बाद हमारी अकाउंटेबिलिटी भी बड़ी वेवर्ड होती है. तो पहला काम तो उसको स्ट्रीमलाइन करना था कि उसको नॉलेज पैक में लेकर आया जाए, और नॉलेज पैक में लाने के लिए आई एम ग्रेटफुल टू माज साहब एंड हिज टीम कि उन लोगों ने उनको गैप्स को आइडेंटिफाई किया कि कहाँ कहाँ गैप्स हैं. पुलिस ऑफिसर्स के बहुत सारे सर व्यूज हैं ऑन द वे वी आर मैनेजिंग डिफरेंट एनवायरनमेंट्स जो हमें मेजर क्राइसिस आते हैं. उसमें एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है, बड़ा गैप है, वो इंटर एजेंसी कम्युनिकेशन का है. हमारे यहाँ बड़ा एसिमेट्रिकल सा रिलेशनशिप है
पुलिस हर जगह हर वक्त मौजूद होती है, लेकिन लीड उस तरीके से मिलती नहीं है या उस तरीके से लीड डिफाइन नहीं होती सिस्टम में, तो फिर पुलिस वाले बहुत ज़्यादा काम करके भी नज़र नहीं आते। और कभी वी हैव आवर सेट ऑफ, फिर हमारी एक नैरेटिव है इस पे जो फिर हम बहुत ज़्यादा एडवांस करते रहते हैं। तो उसको ठीक करने का तरीका यही है कि नॉलेज प्रोडक्शन की जाए, इसको आगे लाया जाए और इन चीज़ों को सिस्टमेटिकली पढ़ा जाए। और जैसे आपने ये सारी एफर्ट की है कि फॉर ऑल टाइम्स टू कम एक चीज़ क्राइसिस मैनेजमेंट पे पाकिस्तान में तैयार हो गई, ये मैंने आज से कोई 20 साल पहले गोरों के हाथ पे सीखा था, तो उसके बाद से मैंने थ्रू आउट कोई 10-15 साल से इस पर कोई ट्रेनिंग नहीं देखी। तो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर ऑफरिंग दिस कोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है जी पाकिस्तान में। और इसके आपने 2 वर्जन बनाए, एक आपने लीडरशिप के लिए बनाया और दूसरा आपने बनाया टैक्टिकल लेवल पे हमारे जूनियर ऑफिसर्स के लिए। तो जो अभी वाला वर्जन है, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि दिस इज गोइंग टू रिलेट विद द आवर लीडरशिप सीनियर लेवल के ऑफिसर्स के लिए, तो उसमें कैटेगराइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ डू वी कैटेगराइज? हमारे पास किडनैपिंग फॉर रैंसम के इश्यूज आपको पता है सबको आते रहते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो अबडक्टी है उसको जिंदा सही सलामत निकाला जाए और उसके बाद फिर आप रैंसम को टैकल करते रहते हैं। तो दिस इज वन बिग एरिया। इसके अलावा सर हमारे पास डे इन और डे आउट पब्लिक ऑर्डर की कई ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जिनमें क्राइसिस मैनेजमेंट हमारा बड़ा मेजर लेवल और एवरीबॉडी इज देयर टू देन टेल पुलिस व्हाट इट हैज टू डू। हालांकि हर एक का अपना अपना रोल प्री डिफाइन होना चाहिए और हर आदमी उसको करे। इसी तरह सर लॉज में बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं या लोग हैं जो आके उस वक्त ऑर्डर देते हैं बट दे डोंट हैव एनी लीगल रोल, इंस्टीट्यूशन रोल नहीं है। तो उसमें बाद में हमें ये प्रॉब्लम आती है कि अकाउंटेबिलिटी हमारी होती है पुलिस ऑफिसर्स की, तो उसको भी ये एरिया आपका एड्रेस करेगा। एजुकेशन और ट्रेनिंग तो है ही है कि हमें जब हमें इसके रियलाइजेशन ही नहीं थी, तो नॉलेज प्रोडक्शन ही नहीं हुई थी, तो हम इसको कैसे करते। इसी तरह से कैटेगराइजेशन में सर एक और बड़ा एरिया जो है वो टेररिज्म के इंसिडेंट्स हैं, उनको हमें टैकल करना नहीं आता, बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी टीएलपी का हमने सारा देखा रिसेंटली पास में पंजाब में जो कुछ होता रहा, तो इसको थोड़ा सा इस पर नॉलेज प्रोडक्शन की जरूरत भी थी और इसमें ट्रेनिंग्स भी कराने की जरूरत थी ताकि चीज़ें बनती जाएं, रोल टेकिंग होती जाए और पता लोगों को किसने क्या काम करना है। इसकी एसओपीज नहीं थी और क्रिटिकल इंसिडेंट मैनेजमेंट और टेररिज्म के इंसिडेंट्स को हमने मिक्स किया हुआ था, उनको भी आपने इस सारे प्रोसेस के थ्रू क्लैरिफाई किया है। तो ये कुछ एरियाज जो की गैप्स की भी स्लाइड चल रही है, मैं उस पर चीज़ें बता रहा हूँ। मुझे पता है कि कराची की पुलिस और सिंध की पुलिस बड़ी प्रोग्रेसिव है सर। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और बड़े प्रोफेशनली बड़े साउंड लोग हैं, हमें इनकी बड़ी रिस्पेक्ट होती है। पंजाब वाले समझते हैं कि शायद वो ज़्यादा चीज़ें जानते हैं। माई ओन एक्सपीरियंस विद सिंध ऑफिसर्स इसके दे आर मच, खासतौर पे कराची बेस्ड जो ऑफिसर्स हैं, दे आर मच मोर हेड ऑफ अस। और आरिफ राव इज़ अ वेरी गुड ऑफिसर, इनको बड़ा हैंड ऑन एक्सपीरियंस है। मुझे पता है कि ये बेहतर तौर पे इस सब्जेक्ट को बता भी सकेंगे और ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे के सिंध के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को सिचुएट कर सकेंगे। बाकी सर आपने मेरा इंट्रोडक्शन करा दिया है। आई वुड लव टू डू इट माई सेल्फ इनके साथ, आरिफ के साथ मिलकर, लेकिन वो यहाँ पे मेरी असाइनमेंट ऐसी कि मैं कमिट नहीं कर पाता, बट आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मुझे बड़ा मजा आया, मेरी अपनी बहुत लर्निंग हुई है सारे काम को करके, और मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन के बाद आरिफ अभी जैसे इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर। आई हैव सीन हिम एट वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस। हमारे मुल्क में अजीब सा मामला हो गया सर, जो बंदे मरवाता है, नुकसान करवाता है, उसको बड़ा अफसर समझा जाता है। तो अगर किसी अफसर ने कोई इशू नहीं बनने दिया तो इसका मतलब उसने बहुत अच्छे इश्यूज हैंडल किए हैं। अनफॉर्चुनेटली उसको, हमारे पास यहाँ और भी मैं ऑफिसर देख रहा हूँ सिंध के, जो इशू ना बनने दे, अच्छे तरीके से हैंडल करे, असल तो उसकी मैनेजमेंट है, वो अनसंग रह जाते हैं, उन पर बात ही नहीं होती है, उनको लीडरशिप नहीं मिलती। तो बहरहाल ये दिस इज एन ऑन गोइंग डिस्कशन। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। और मैं इजाजत लूंगा बिकॉज मुझे अभी, मैं एम स्टिल इन यूनिफॉर्म, मुझे जाना है और नमाज भी पढ़नी है। एंड आई एम श्योर कि आरिफ साहब इसके साथ बड़ा इंसाफ करेंगे। आई नो हिम एज वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स इन पुलिस डिपार्टमेंट। Thank you so much, Kamran Adil Saab, for that. And यहाँ पे भी almost Maghrib का वक्त अभी होने वाला है. So we will just go briefly over the course design, and then उसके बाद एक break लेंगे, and then we'll have Arif Saab come back and give a small little brief how he's going to carry forth this. And then I think Bilgami Saab आप आए हैं, तो आप अगर अपना introduction कराना चाहें तो please. मेरा नाम मोहम्मद अली बिलग्रामी है और आई एम program manager, senior program manager at GNMI. Now just briefly for the course towards introduction agar ho jaye, so then after that we will take a break so that you have an idea based on these gaps.
we were able to identify certain things, and we had actually some help because we combined some resources together with DIG Sahab, Kamran Adil's findings. We were able to kind of coordinate with some of our expertise overseas. And our key kind of course designer that was able to kind of put the thoughts what Kamran Adil shared put together in the course was Gamal Abdul Hafiz, who is a special agent of the FBI, over 21 years of experience since 1994. Particularly इनका experience जो है hostage negotiation and training in multiple jurisdictions, particularly Middle East and North Africa. He's a FBI certified trainer, and currently he heads a Gibraltar Security Consultants out of Dallas. So he was kind of the main key person. He unfortunately is not able to join at this time. वहाँ पे बहुत late night है, so he does give his regards. But just a little bit about the course. As Kamran Adil has said, Pakistan has faced a fair share of criminal incidents, which transformed into crisis. The situations required specialized mitigation, de-escalation through negotiation. According to the law, criminal justice practices, an interagency and well-coordinated effort are needed to resolve such crisis situations. जैसे कामरान आदिल साहब ने कहा था, ये जो एक ही गैप है, ये हमारे इंटर एजेंसी जो है कोऑर्डिनेशन बड़ा कमजोर है, और ये ट्रेनिंग इसी में फोकस करेगा इस इशू के ऊपर कि how do we get that interagency coordination on tight lock, particularly at a strategic level, because when violence meets violence, it's resulting in loss of human life on both sides, and that's something we're trying to avoid at all costs. Now, crisis negotiation apply not only to hostage situations, but just Kamran Adil Saab said as well, ये जो sit-ins भी हैं, kidnappings भी हैं, protest हैं, आपको पता है ये पाकिस्तान का माहौल किस तरीके से है, TLP के भी कुछ इंसिडेंट हुए थे, and police's interaction with them and how they manage that. ये सिंध में भी इस तरह से situation है, अभी धरने चल रहे हैं, you know, there's some protests, there's political gatherings. उन सारी चीज़ों को manage करना, what skills and training in the field can change these outcomes and how to do that. The training for law enforcement agencies in Pakistan in this area needs a lot to be done, as DIG Saab said. So the knowledge and skills that for the law enforcement managers are uncommon. And so the training for the critical incident management is not part of any mandatory training curriculum, as Kamran Adil Saab said. So this is, you know, these two courses are designed in that context. So while the importance of crisis negotiation is recognized by the Constitution and the law in Pakistan, law enforcement agency management may not understand the capabilities and approaches used in negotiations and may want to interfere with or make decisions that impede the negotiation team's effort. जैसे अभी कामरान आदिल साहब ने कहा था, जिसने इतना बड़ा वो किया है और जो लोग ने de-escalate किया उनकी तो चीजें highlight ही नहीं हो रही, and to be honest, they're the real hidden heroes. और वो किस लिहाज से जो है negotiate करके वो मामला को ख़त्म कर देते हैं और वो सामने headline नहीं बनता, but it's a big thing that they did. So this is especially true in the case of Pakistan, where multi-tier law enforcement agencies है, जो सिंध में है हमारे अभी जो participants, you know very well, यहाँ पे rangers का भी एक role है, और उसको साथ लेते हुए किस तरह से जो है we can have that approach. Again, inter-agency जो coordination है, district management, you know, paramilitary forces, and they're all focusing on crisis incidents and decision-making capacity. And of course, within Sindh Police, you have different areas. You know, you have the Rapid Response Force, other elements that also kind of work within the structure of Sindh Police. So critical role of obviously law enforcement commanders is basically during crisis situations, there's media management. Ab media ko bhi kis tarah se manage karna to prevent chaos in public and unrest in subjects and overall contain the situation. तो ये भी एक चीज है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि मीडिया को और मीडिया मैनेजमेंट को किस तरह से आप हैंडल करें, क्योंकि it's not going to be the tactical people talking, it's going to be the strategic level. It's going to be commanders like yourselves who are going to be, you know, approached by the media. How do you tackle those things? And of course, in Pakistan, media reporting has been unchecked during crisis negotiation. आपको पता है कोई explosion होता है, and you know सब headlines चल रही होती हैं, फलानी चीज हो गई, and all these things happen, and unconfirmed reports, and unfortunately sometimes some members of the police also become you know, kind of it's like थोड़ा सा juggernaut बन जाता है, तो उसमें वो added factors आ जाते हैं. You know, we don't want to create public panic, and I'm pretty sure all the officers here, you understand the importance of that. So there's things how to leading the public faith and dependence on these situations and the government's ability to handle these situations and how to handle that media challenge. And this course, of course, Crisis Negotiation Strategic, is developed to address these concerns. It introduces fundamental units of knowledge for likely law enforcement agency decision makers,
referred to as negotiation concepts for commanders. So there's going to be a particular focus on that. The essential concepts of this course are laid out with respect to critical incident types and dynamics, crisis management triad, the negotiation strategies and indicators for law enforcement agencies. Aapko bhi pata hona chahiye, you should be able to read situations. What are the indicators in a situation? Decision-making considerations, और also जो strategic role जो आप commanders का है, जहाँ पे media management के साथ जो deal करना होता है. Negotiation in this course is outlined as a process to establish rapport, creating influence to avoid aggression and encouraging peaceful surrender, and ensuring tactical containment of the situation. So that's what we are working for. Proud to serve is the motto for this in police. So they're there for the service of the public, and they are there to, create whatever situation is to bring a most peaceable outcome. And I'm pretty sure most of you officers here agree to that sentiment. Some of the basics about the course length is about 26 hours long. It's about 22 hours, a little short of that is synchronous, and about 4 hours that are asynchronous. In fact, there's a little bit more than 4 hours there. So majority of our training will be actually online. It'll be live as we are doing right now with SSP Arif Rao taking the lead in this. The course objective is to equip the law enforcement commanders with foundational knowledge, skills, and strategies for understanding and managing crisis situations to a peaceful and otherwise best possible resolution. Sometimes, peace might not be it, but we try to minimize the damage and the violence as much as possible to come to a resolution to the crisis. Course learning outcomes. Participants will understand how to develop and implement a unified strategy for crisis resolution through negotiation and tactics in the crisis situation. Also, the participants will learn about decision-making criteria and events during the crisis situation. I think this is important. जब crisis आपके सामने है, तो आपके जो decisions हैं, you have 2-3 options. What makes the better? What criteria do you go through before making that decision on how to approach? So I think that's very key, and kind of understanding that breakdown. The participants will also understand the media coverage principles of the crisis situation as well. And as we kind of mentioned that already. A little basic breakdown of the modules, ताकि आप लोगों को एक नक्शा मिले कि जो training में अभी हम करने जा रहे हैं कितने उसके अंदर modules and steps क्या. Module 1, which is basically the basics of understanding the crisis situation, like Kamran Adil Saab just mentioned, that we have to be able to types and systemize this approach so we understand what sort of approach we're going to take, because we have been able to analyze this situation, this is this type of crisis situation. This is the first step, understanding the crisis itself. Module 2 is strategies and techniques of crisis negotiation. These are the basic 101s when it comes to how to approach the crisis, and what are the basic tools that as a commanding police officer you can use in the field, be able to kind of have the officers under you maintain the control over them in that situation. Just basic 101 on that. Then understanding the negotiation team structure. Now, once the situation has been identified, the basic strategies will hopefully be able to give you that basic skill set. We have to understand what is the structure for the negotiating team, and I think this is very important. जैसे उन्होंने कामरान आदिल भी थोड़ा सा हिंट किया कि ऊपर से आके कोई एक्शन ले लेता है, and this type, and that's what breaks it down, especially particularly जब inter-agency की बात आती है. So it's very, जो structured approach है, this is important. So we know at the end this decision is within this area, and यहाँ से इसके बढ़ के इख्तियारात किसी और के पास हैं जो वो decision make करेगा. कभी इस तरह से जो है जब तक structure नहीं होगा सामने, so then people are going to be offering and negotiating and doing things that are outside of that context. And like Kamran Adil Saab said, one of the key issues is that there's just not laws around it. So working within the current structure, we can at least try to develop this. And this is what we're going to talk about, how to develop that negotiation team structure. And yeah, आपके लिए अच्छा होगा. बज़ाहिर it might not see अच्छा चलो मैं नहीं कर रहा को किसी और को. When you have, because as a lawyer, मैं भी negotiations में particularly जो contractual negotiations होते हैं उसके अंदर हम client, obviously अगर दो लोग बैठ के अपने आपस में भी negotiate कर सकते हैं. But when you introduce some other people into the picture, it allows the जो preconceived biases कभी आ जाते हैं ना बीच में, तो वो होता है. For example, like a negotiator, when he goes and talks, it makes it seem like the negotiator is not actually a policeman with a firearm.
that's like, one of the key elements there is you want to say that you're not threatening. So they're more open to have that discussion. And I'm pretty sure many of you have been in crisis situations or been able to view, particularly in some media context, how that's handled. They want to make sure that the other side understands that we're here to talk. So that's why structure is very important. But we'll talk about that later in Module 3. And just to sum it up here, as we get for the prayer break, Module 4 is a unified strategy and related indicators. Basically when you're working with interagency. And then Module 5 is decision-making criteria for commanders. What's that criteria? How do you make that decision? And why you should make that decision. So we're going to look at Module 6 as well, which is the media coverage principles. And this is key on managing the whole crisis with the relation to the public. Because the conduit of that information is primarily going to be through the police and the people who are dealing with that. So controlling that valve, controlling जितना वो information जा रहा है तो public के लिए जितना जो consumption के लिए अहम है और जितना जो है उनकी ताकि panic spread ना हो और उसको किस तरीके से manage करना और मीडिया वालों को भी किस तरह से control करना आपको भी I'm pretty sure many of you have had experiences with that and we'll probably have a lot of good group discussion in Module 6, I'm pretty sure, some of the experiences. So without further ado, we'll have a little break here and then come back and I'll introduce SSP Arif Rao and we can then go from there. Is that good? Thank you all. Thank you, Muaz, for sharing the outline for us. And before we break for namaz, I want to thank all the participants, especially participants from जो हमारे आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस से हैं आज हमारे साथ, considering कि ये I think पहली ट्रेनिंग है जो कोई भी INL सपोर्टेड प्रोग्राम की आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उसके अंदर शामिल हो रही है. So congratulations to you and hope it will be beneficial to all of you. Thank you very much. I almost forgot that we do have some members in this training from Azad Jammu Kashmir who have also joined. I apologize for that. I completely slipped my mind because majority of our participants are from Sindh Police, but there are some participants from Azad Jammu Kashmir, and SSP Arif Rao is also aware of this. And inshallah, within that context, I'm pretty sure he will do that. So, and as other participants join, I will go ahead and introduce the element of the training aspect. We've discussed the gap analysis and training का जो अभी main हिस्सा जो अभी हम करने जा रहे हैं. इसके लीड हमारे ट्रेनर हैं SSP Arif Rao साहब. He was 37th CTP pass out. जहाँ पे इन्होंने जो है civil services को exam pass करते हुए he joined the PSP in 2010, and he has over a decade of experience in the police service in Pakistan. Since that time, currently he's serving as the, eventually moving up the ranks. Now he's currently the SSP Investigation District West. And inshallah, he will be able to talk a little bit more about how he will carry on this training. And without further ado, I'd like to give him the mic and to go ahead and talk a little bit in respect to that and what he plans on doing for this next few weeks. And then we'll open the floor for some questions. So thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and Assalamu alaikum to everyone. Thank you very much, Muaz Sahab, Mr. Hasnan, Furqan Sahab, Mohammad Ali Bilgrami, and especially my senior colleague, my officer, DIG Kamran Adil Sahab, who were very gracious in introducing me. And he said a few things, I would count as kind of his courtesy and his graciousness. And I wish that I possess all those qualities that he said. But nevertheless, first of all, thank you very much. I take this opportunity very dearly and very seriously because police training is one aspect that is usually it has kept in the dark. For most of the time, on-job trainings are ignored. So as the situations come up
And as the police officers, they keep on moving up the ladder in their ranks and files, the capacity building is left somewhere at the back. So this is a very wonderful initiative that you guys have taken up, that you are working actually with some of your, some of international agencies to build the capacity of police officers and law enforcement agencies in Pakistan. And, in the overall justice sector, as you mentioned in the introduction, the first part of the introduction, that it spans all over the justice sector, not just the police, other organizations as well, and the other departments included in the justice sector, or the maybe it extends to the judiciary or the lawyers as well. As I was going through the courses, I thought that they are also be going to part of some of your trainings. So this holistic approach is what seems to be missing most of the time. We all are doing some wonderful work in our own domains, but those are not shared actually with the other side of the fence. And it's usually when we see it from the user's point of view, it's them versus us. So if we develop the capacity as a whole in the justice sector, or in the criminal justice system, it will actually and ultimately help the end user, because it is the end user who is suffering from the lack of capacity of all these departments, or the lack of coordination in the departments. So these words, I would like to thank this GNMI and all those who are involved in this, this Ziauddin University. I guess Mr. Muaz is online, and I would like to thank him for giving a brief introduction of the course. I would like to switch to Urdu because most of my participants would be more convenient and comfortable in Urdu language. So सबसे पहले पुलिस ऑफिसर्स को भी अस्सलाम वालेकुम. आप लोगों में से कई लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए जो इंट्रोडक्शन अभी मुआज साहब ने किया है, तो मेरा नाम मोहम्मद आरिफ असलम राव है. मैंने 2008 में CSS क्वालिफाई किया 2008 में, और 2010 में मैंने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन की. पंजाब में पहले मैंने सर्व किया, फिर उसके बाद हम सिंध वापस आ गए, और बिकॉज आई हेल फ्रॉम कराची. और फिर वापस आने के बाद मैंने सिंध में सर्व किया, इंटीरियर सिंध में भी, कराची में भी, डिफरेंट असाइनमेंट्स, ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशन एंड स्टाफ असाइनमेंट्स एज वेल. सो ये ट्रेनिंग से रिलेटेड एक्टिविटी मेरे ख्याल में बहुत अच्छी एक्टिविटी है. पुलिस ऑफिसर्स को अक्सर जो डे टू डे अफेयर्स में वास्ता पड़ता है, वो इस किस्म की चीज़ों से उनका वास्ता होता है जिन पे उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है. और जब हम सब लोग अपनी जॉब्स में होते हैं तो हम इतने बिजी होते हैं और हम लोग इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड होते हैं, बिकॉज पुलिसिंग इज़ अ वेरी वेरी टफ जॉब एज वी ऑल अंडरस्टैंड. जैसे वैसे अपना काम सबको मुश्किल लगता है, कोई भी कह सकता है कि बात, लेकिन हमारे काम का जो नेचर 24/7 है वो हमारे काम को बहुत मुश्किल बना देता है. तो ऐसे मुश्किल काम को करने के लिए इसमें जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर ये जो आपका एक करियर प्रोग्रेशन है, इसके दौरान अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करने का आपको टाइम नहीं मिलता. अभी जो पहले मैं बात कर रहा था, मैं पुलिस ऑफिसर से मुखातिब हूँ, उनको मैं कहता हूँ कि आप अपनी कैपेसिटी को बिल्ड नहीं कर पाते. आप वक्त के साथ साथ, जिसे कहते हैं ना, वो धक्के खा के और ठोकर खा के सीखने वाला काम पुलिस में हो रहा होता है. वो चीज़ के बजाय अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग्स हों और पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ इस तरह के एक इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर अगर सिखाया जा सके, उन्हें बताया जा सके कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आपके सामने आए तो आपने क्या करना है. ये क्राइसिस सिचुएशन या क्राइसिस नेगोशिएशन के हवाले से एक ट्रेनिंग है, लेकिन अदरवाइज भी इसके अलावा जो ट्रेनिंग्स इस तरह की दूसरी भी होती हैं, इन तमाम ट्रेनिंग से फ़ायदा ये होता है कि आप उस टेंस इन्वायरमेंट से बाहर निकल के एक मिनट को ये देख सकते हैं कि बेसिकली अगर कोई प्रॉब्लम मेरे सामने आती है, कोई सिचुएशन बिल्डअप होती है, तो मैंने उसको एज अ पुलिस ऑफिसर किस तरह हैंडल करना है. और बाज़ औक़ात आप रूटीन में उन सिचुएशंस को हैंडल कर रहे होते हैं, ऐसे केसेस आपके पास आ रहे होते हैं या ऐसी सिचुएशंस डेवलप हो रही होती हैं, बट होता क्या है कि आपके पास वो एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं होता, या वो जो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं उनसे आपकी अवेयरनेस नहीं होती, तो आपको उस वक्त उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोई एडहॉक मैनर इख्तियार करना पड़ता है. और अल्टीमेटली होता उस एडहॉकिज्म की वजह से ये है कि आप बहुत सारे गलत डिसीजंस भी कर जाते हैं.
क्योंकि कोई मेथोडिकल थिंकिंग उसके पीछे नहीं होती। इस किस्म की ट्रेनिंग से यकीनन ये फ़ायदा हो सकता है कि आपको वो मेथोडिकल थिंकिंग का टाइम मिलता है, आपको मौका मिलता है इस बात को समझने का कि अगर इस तरह की सिचुएशंस सामने आए तो किस तरीके से उन्हें हैंडल करना है। सो मेरे ख्याल से हमने आज की जो कोर्स आउटलाइन की बात करनी थी, वो कोर्स आउटलाइन आप तकरीबन शेयर कर चुके हैं मुआज़ साहब ऑलरेडी आप लोगों से। इसमें जो 3 बेसिकली चीज़ हैं, सबसे ये जो मॉड्यूल्स हैं, इन मॉड्यूल्स को थोड़ा सा पहले पुलिस ऑफिसर्स अगर समझ जाएंगे तो उनको आइडिया होगा कि हम किस चीज़ की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो क्राइसिस नेगोशिएशंस की हम बात करने जा रहे हैं, यानी अगर कोई क्राइसिस बिल्डअप होता है तो उसमें नेगोशिएशंस का क्या किरदार है। तमाम पुलिस ऑफिसर्स किसी भी रैंक पे, किसी भी लेवल पर काम करते हुए मैं ये समझता हूँ कि डे इन एंड डे आउट हर रोज हर वक्त हमारी नेगोशिएशंस का टेस्ट हो रहा होता है, नेगोशिएशन स्किल्स का। हम लोग हर वक्त किसी ना किसी सिचुएशन के साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात क्रिमिनल्स के साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, बाज़ औक़ात पब्लिक के साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं। क्रिमिनल्स के साथ कब कर रहे होते हैं, जैसे कोई होस्टेज सिचुएशन है, कोई किडनैपिंग फॉर रैंसम की सिचुएशन है, तो हम क्रिमिनल्स के साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं। कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, कहीं रोड ब्लॉक हुआ है, हम सिविलियंस के साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं। कहीं पर 2 ग्रुप्स के दरमियान झगड़ा हो जाए तो हम जाकर पहले झगड़े को रोक के और उसके बाद उसका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो हम 2 जो एंटागोनिस्ट ग्रुप्स होते हैं या जो 2 राइवल ग्रुप्स होते हैं उनके साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं। नेगोशिएट या मुज़ाकरात करना ये हमारे जॉब का ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कि एक लाज़मी हिस्सा है। लेकिन क्या होता है कि हम रूटीन में इस चीज़ को इस तरह से जैसे सामने सिचुएशन आई जैसे और उसी वक्त हमने उसको जिस तरह हमें समझ आई उस तरह हैंडल कर लिया, इस तरह कर रहे होते हैं। कभी हमने बैठकर इस पे सोचने का टाइम, जैसा मैंने कहा कि हमारी जॉब्स इतनी बिजी होती हैं, इतने टफ स्केड्यूल्स होते हैं कि बैठकर इस पे सोचने का टाइम हमारे पास नहीं होता और हमें इस तरह का एनवायरनमेंट अवेलेबल नहीं होता कि अगर हम बाद में सोचें और सोच के हमारे जहन में कुछ क्वेश्चंस पैदा हों तो उन पर आंसर करने के लिए भी हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं होता, कोई गाइडलाइन अवेलेबल नहीं होती। तो अगर इस किस्म की ट्रेनिंग से हम गुजरेंगे तो हमें ये फायदा होगा कि फील्ड में आपके सामने एक सिचुएशन आएगी इस कोर्स से गुजरने के बाद, तो आपको महसूस होगा कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मैंने कहीं कोई बात सुनी थी, कहीं कोई तरीका अडॉप्ट करने के बारे में मैंने कोई गाइडेंस ली थी, तो मैं उसको इस सिचुएशन के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। उससे आपको फायदा होगा उस सिचुएशन को हैंडल करने में प्रोफेशनली और उसके नतीजे ज्यादा बेहतर होने के चांसेस होंगे। लाइकलीहुड बढ़ जाएगा कि आप उसमें एक पीसफुल सोल्यूशन हासिल कर लें। देखें, नेगोशिएशन यूजुअली किस वक्त हो रही होती है, किसी क्राइसिस के अंदर हो रही होती है और आम तौर पे किसी टेबल टॉक के बीच में भी हो रही होती है। आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो अपने डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स लेकर आते हैं। आप उनको दोनों फरीकैन को अपने सामने बिठाते हैं पुलिस ऑफिसर होते हुए और पुलिस स्टेशन में, वो आप पुलिस की लैंग्वेज में मैं बात करूं तो आप कहते हैं ये नॉन कॉग मसला है, इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं हुआ, कोई ऐसा ऑफेंस नहीं हुआ जिसकी वजह से अभी लॉ मोशन में आए और एफआईआर दर्ज हो और अभी लोग गिरफ्तार हो। नॉन कॉग मैटर होता है, लेकिन आप ये जरूर देख रहे होते हैं कि इस नॉन कॉग मैटर ने कल को किसी क्राइम को जन्म देना है। इसकी वजह से कल को कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है जो बाज़ औक़ात जाके कत्ल और खून खराबे पे एंड अप होती है। इसलिए आप क्या करते हैं, वहां नेगोशिएशंस करते हैं लोगों के दरमियान। ये भी एक बेसिक एक पुलिस ऑफिसर का स्किल होता है कि वो किस तरह नेगोशिएट करके 2 लोगों को एक ग्राउंड के ऊपर, एक पेज के ऊपर ले आता है और उनसे उनका नतीजा निकालता है, कोई मसले को हल करता है। और हमारा हमेशा जो हमारा डिजायर्ड सोल्यूशन होता है वो होता है पीसफुल सोल्यूशन। लेकिन जैसा कि वो जब कोर्स आउटलाइन को डिफाइन कर रहे थे मुआज़ साहब, तो उन्होंने एक बात कही थी, मैं आप लोगों की आसानी के लिए उसे उर्दू में भी रिपीट कर दूं कि हर दफा पीसफुल सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। पीसफुल सोल्यूशन इस वजह से पॉसिबल नहीं होता कि आपके सामने एक मॉब आया हुआ है। आप देखिए, ये थोड़े अरसे पहले जो टीएलपी के या इस तरह की मजहबी तंजीमों के आपने इससे पहले भी देखे हैं, टीएलपी से पहले बहुत सारी और मजहबी तंजीमों के आपने जो है ना वो मुजाहिरे देखे हैं, वो पुरतशद्दुद हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं। वहां पर आप एकदम से कहें कि ये सब लोग पीसफुल हो जाएंगे तो वो नहीं होता। लेकिन क्या होता है, वहां पर कुछ आप लाइंस ड्रॉ करते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर, आप कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं कि ये चीजें हैं, इस लाइन से आगे नहीं आना है, यहां तक आप आ सकते हो, इससे आगे नहीं आना है, ये इमलाक है, इसको आपने नुकसान नहीं पहुंचाना है। उसके दरमियान रहते हुए आप थोड़ी सी उनको लिबर्टी भी देते हो। दैट्स काइंड ऑफ अ बार्गेन। वो बार्गेन जो है वो इसलिए कर रहे होते हैं कि आप एकदम किसी को सप्रेस करके उसको बिल्कुल खामोश नहीं करा सकते।
तो इस तरीके की सिचुएशन में हम नेगोशिएशंस को यूज करते हैं। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि डोमेस्टिक डिस्प्यूट से लेके एक बड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से लेके और फिर इस तरह के यूनिक किस्म के क्राइम्स में भी नेगोशिएशंस की हमें जरूरत पड़ती है, जैसे किडनैपिंग फॉर रैंसम होता है। किडनैपिंग फॉर रैंसम में उन्होंने बाज़ औक़ात जो क्रिमिनल्स हैं वो राब्ता करते हैं और वो कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, इतने पैसे चाहिए और उसके बाद हम बंदे को छोड़ देंगे। तो उस वक्त हमारी कोशिश क्या होती है कि हम एट द सेम टाइम उन्हें ट्रैक करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम हम उन्हें एंगेज कर रहे होते हैं, उनसे बातचीत कर रहे होते हैं, उनसे उनके डिमांड्स पूछ रहे होते हैं, फिर उन डिमांड्स के ऊपर उनके साथ निगोशिएट कर रहे होते हैं, टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो टाइम हमें उन तक पहुंचने में बाज़ औक़ात मदद दे रहा होता है, बाज़ औक़ात वो उनकी डिमांड्स को उनको फटीग करके डिमांड्स को नीचे लाने में मदद देता है। तो ये भी होता है। आप में से सबको याद होगा वो इस्लामाबाद में जो सिकंदर का वाक़या हुआ था कि एक शख्स ने आकर जो है वो अपनी फैमिली के साथ वेपन उठाकर खड़ा हो गया और कहा कि मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा और अगर हटाओगे तो मैं नुकसान पहुँचाऊँगा, जो आएगा उसको भी, अपने आप को भी, अपनी फैमिली को भी। तो वो एक ऐसी सिचुएशन बन गई जिसने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक हाइप क्रिएट कर दी। तो ऐसी सिचुएशंस में जो आगे इसका एक मॉड्यूल आने वाला इसी में, वो होगा मीडिया हैंडलिंग का, कि आपको ऐसी सिचुएशंस जब बनती हैं जो कि क्रिटिकल इंसिडेंट एकदम डेवलप होता है, तो वो एकदम से एक मीडिया की हाइप भी क्रिएट हो जाती है। आपको एट द सेम टाइम पुलिस ऑफिसर को उस सिचुएशन को भी हैंडल करना है, उस होस्टेज की सेफ्टी को भी यकीनी बनाना है, अगर उसने कोई फैमिली, कोई शख्स, कोई बच्चा होस्टेज किया हुआ, उसको भी यकीनी बनाना है कि ये सेफ एंड साउंड रहे, और एट द सेम टाइम आपने मीडिया को भी हैंडल करना है। तो मीडिया से आप आंख बंद नहीं कर सकते, वो इस वक्त एक बहुत बड़ी रियलिटी है। उसी आपके हमारे रोज के क्राइम इंसिडेंट्स के अंदर मीडिया एक बहुत बड़ी रियलिटी है, एंड इट इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन योर टर्म्स ऑल द टाइम। इसलिए उनके साथ भी कम टू टर्म्स करना पड़ता है हमें, कहीं ना कहीं वी हैव टू कम टू टर्म्स विद देम। और उसमें होता क्या है कि हम कोई कॉमन ग्राउंड करते हैं, बाज़ औक़ात उनसे भी निगोशिएट करते हैं, बाज़ औक़ात हम उनसे बात कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि इसे ऑफ द रिकॉर्ड रखें, इसे चलाएं नहीं, लेकिन ये आपकी कंजम्पशन के लिए हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात वो अपनी कमिटमेंट को फुलफिल करते हैं, एट टाइम्स नहीं भी करते। ये हमारी उनके साथ एक उस मौके के ऊपर मीडिया हैंडलिंग का हिस्सा होता है कि हमने क्या बात उनको बतानी है, क्या नहीं बतानी। इस पे भी हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें करते हुए एक बात जो हम हर वक्त कर रहे होते हैं वो डिसीजन मेकिंग होती है। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फोकस ये होता है कि पुलिस ऑफिसर जो है वो डिसीजन जरूर करे। डिसीजन ना करना और किसी सीनियर का इंतजार करना या किसी बुरे वक्त का इंतजार करना या किसी एक्सट्रीम पे पहुंचने का इंतजार करना, दिस इज नॉट अ चॉइस इन टुडेज वर्ल्ड। आज के दौर में आपका ये चॉइस नहीं है कि आप डिसीजन ना करें, यू हैव टू मेक डिसीजंस। तो डिसीजंस करने के लिए क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके से डिसीजन करना चाहिए, किन फैक्टर्स पे अपने डिसीजंस को बेस करना चाहिए, और आपके डिसीजन के करते हुए आपके पास कौन कौन सी चीजें जहन में होनी चाहिए कि ये तमाम काम अगर मेरे हो जाएं, इस तरह से मैं असेस करूंगा तो मैं फिर किसी बेहतर डिसीजन करने की पोजीशन में होऊंगा। ये सारी चीजें इस कोर्स का हिस्सा होंगी। सो मेरे ख्याल में ये आपकी बहुत सारी हर पुलिस ऑफिसर जो है वो अपने करियर में और सारे दिन अपनी जॉब में बहुत सारी सिचुएशन से गुजर रहा होता है, और मैं समझता हूँ कि इस कोर्स को अगर आपने थोड़ा सा सीरियसली किया और इस कोर्स को आपने थोड़ा सा इसमें से कुछ लर्न करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए कोशिश की, तो इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन मेनी सिचुएशंस जो कि आप अपने जॉब में, आप अपने प्रोफेशनल करियर में फेस करते हैं। मैंने देखा था पार्टिसिपेंट्स लिस्ट में कि यहाँ पर हमारे पास इंस्पेक्टर्स भी हैं, हमारे पास सब इंस्पेक्टर्स और एएसआईज जो एनजीओज हैं वो भी हैं, एट द सेम टाइम हमारे पास जो है वो जूनियर ऑफिसर्स भी हैं, हेड कांस्टेबल्स और कांस्टेबल्स भी हैं। एट टाइम्स हमारे जहन में आता है कि ये कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को कहाँ डिसीजन मेकिंग करनी है, इसे कहाँ नेगोशिएशन करनी है। बट लेट मी टेल यू, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। मिसाल के तौर पे आप एक छोटी सी मिसाल ले लें, आप जब पोलियो की ड्रॉप्स की जो एक मुहिम होती है कि बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने होते हैं, उस मुहिम में पोलियो की जो टीम होती है, लेडी हेल्थ वर्कर्स यूजुअली होती हैं, उनके साथ हमारे कांस्टेबल्स जा रहे होते हैं। एक लेडी कांस्टेबल होती है, एक या दो मेल कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल होते हैं। आप 2 या 3 लोग मिलकर एक पोलियो टीम के साथ एक एरिया में जाते हैं। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर कोई सेंट्रल से, नाजमाबाद से भी कोई ऑफिसर हैं।
आप ये देखें कि नाज़िमाबाद के किसी छोटे से एरिया के अंदर आप चले गए, मुजाहिद कॉलोनी टाइप के एरिया में चले गए पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए, वहां पर आप जाकर आपके ये 2 लोग, एक कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल, वहां कुछ लोग ऐसे जमा हुए जिनके अंदर, जिनके जहनों में पोलियो से रिलेटेड कोई बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो पोलियो के ड्रॉप्स को गलत समझ रहे हैं, वो आपकी बात को समझ नहीं रहे। उन्होंने क्या किया, उन लोगों को थोड़ी देर के लिए महसूर कर लिया, बहुत सारे लोग जमा हो गए और उन्होंने उनको वहां होस्टेज कर लिया। अब जब तक ऑफिसर कोई पहुंचेगा, एसएचओ पहुंचेगा, डीएसपी पहुंचेगा, एसपी पहुंचेगा, उस वक्त तक उन पोलियो हेल्थ वर्कर्स को और अपने आप को सेफ रखने के लिए डिसीजन किसने करना है? उस कांस्टेबल और उस हेड कांस्टेबल ने ही करना है जो वहां पर मौजूद है। सो एवरी पुलिस ऑफिसर हैज इनवेरिएबली ही हैज टू मेक डिसीजंस। हर पुलिस ऑफिसर को डिसीजन नहीं पड़ती है। तो इस डिसीजन मेकिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं, उनमें एक बहुत अहम कंसिडरेशन ये होती है कि आप डिसीजन मेकिंग के लिए किस हद तक तैयार हैं। समझ रहे हैं मेरे पॉइंट को? आप डिसीजन मेकिंग के लिए किस हद तक तैयार हैं, आपकी जो मेंटल स्टेट है वो कितनी रेडी है। फिर उसके बाद क्या आप इस सिचुएशन को रीड करने के काबिल हैं? क्या आप इस सिचुएशन को रीड कर रहे हैं? अगर आप इस सिचुएशन को रीड कर रहे होंगे तो डेफिनेटली यू वुड बी एबल कि आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये किस किस्म की सिचुएशन है। बाज़ औक़ात वो सिचुएशन ऐसी, अभी जो हम सिचुएशंस की टाइप्स पढ़ेंगे, देखेंगे, तो ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी और आप रिलेट करेंगे इसको कि हाँ, ऐसी सिचुएशन तो मैं पहले देख चुका हूँ, ऐसी सिचुएशन तो पास्ट में मेरे साथ हो चुकी है, लेकिन उस वक्त मैंने जो डिसीजन किया था वो मेरा कोई लर्नेड या एजुकेटेड डिसीजन नहीं था। वो डिसीजन वो था जो ऑफ द कफ मुझे बात समझ में आई उस वक्त, वो मैंने कर दी। अच्छा, बहुत सी दफा वो बात जो आपको समझ आ रही होती है एक्चुअली वो ही सही सोल्यूशन होता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, यूजुअली हैंडलिंग अ सिचुएशन इज नॉट अ रॉकेट साइंस। यूजुअली उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अपना एक लर्नेड माइंड अप्लाई करना होता है, एक कॉन्शियस माइंड अप्लाई करना होता है, एंड यू आर एबल टू हैंडल द सिचुएशन। बहुत से केसेस में इस तरह होता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके पास वो सेट ऑफ स्किल्स मौजूद है, वो आपके पास नॉलेज मौजूद है, वो आपके पास क्राइटेरियाज मौजूद हैं जिन पर बेस करके आपने अपने डिसीजन को करना है, तो आपको आसानी होगी डिसीजन करने में और आपके डिसीजन के कामयाब होने की लाइकलीहुड ज्यादा हो जाएगी, उसके चांसेस बेहतर हो जाएंगे कि आपके इस डिसीजन से कोई बेहतर असरात निकलेंगे, इससे आप अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल व्हाट दिस ट्रेनिंग इज अबाउट। बिल्कुल, मैं जब बात कर रहा था इस ट्रेनिंग के कंटेंट को मैं गो थ्रू कर रहा था, तो उस वक्त मैं ये देख रहा था कि हाँ, इसमें हमने इसको रिलेट करना है पुलिस के प्रैक्टिकल वर्क से। पुलिस का प्रैक्टिकल वर्क जो है उसके साथ इसको रिलेट करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको कस्टमाइज करना पड़ता है। तो मैं आपसे जो जिस तरह ये ट्रेनिंग करने का इरादा रखता हूँ, जैसा कि ये मुझे हमारे डीआईजी कामरान आदिल साहब ने मुझे ये असाइन किया कि आप कराची पुलिस में हो, तो कराची पुलिस के ऑफिसर्स के लिए बेहतर यह है कि आप ग्राउंड लेवल के ऊपर चीज़ों को जानते हो, बेहतर उनको बता सकते हो, तो आप इस पे उनको बताओ। तो मैंने जब देखा इस ट्रेनिंग को तो मैंने ये सोचा कि हाँ, कराची पुलिस के हवाले से हमें बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल डोमेन में समझना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ हम जिस चीज़ को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को गैर अहम समझते हैं, हम कोशिश करेंगे उसे टच करके उसकी अहमियत आपको समझाने की, कि जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंस रखते हैं। होता यह है कि हम उनको अक्सर गैर अहम समझ रहे होते हैं। हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे एक 25 साल 30 साल की एक्सपीरियंस रखने वाले, सर्विस का एक्सपीरियंस रखने वाले पुलिस ऑफिसर जब वो ऐसे किसी ट्रेनिंग पर आते हैं तो वो कहते हैं कि सर, मैंने तो ये सारे काम कर रखे हैं, मैंने लॉ एंड ऑर्डर भी हैंडल किया हुआ है, मैंने एक दफ़ा एक बंदे को होस्टेज बना लिया था, मैंने वो भी हैंडल किया, और जनाब वो कोई कोई डाकुओं से मुज़ाकरात भी हो रहे थे, वो कहीं छुपे हुए थे, हम बाहर ऑपरेशन कर रहे थे, ऐसा भी मैंने किया, और ये सारे काम मैं कर चुका हूँ। सो देयर इज नथिंग न्यू फॉर मी इन दिस प्रोग्राम। तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट होता है ना, वो इस वजह से होता है कि हमने इन चीज़ों को इन डेप्थ कभी स्टडी नहीं किया होता, एंड वी आर एक्चुअली हम वो जो एक मिसाल दी जाती है कि वो ठोकरें खा के सीखना, या वो जो स्ट्रीट स्मार्टनेस हमें आती है पुलिस ऑफिसर में, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स अगर आपको पता होंगे, आपका डिसीजन करना आसान हो जाएगा। और दूसरा बात ये होती है कि हर फील्ड में कुछ नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं दुनिया में, हर फील्ड में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स दुनिया के अंदर आ रहे हैं। हम उनसे अक्सर जो होते हैं ना, वो लाइल होते हैं। वो कॉन्सेप्ट्स देखें, आज हम बात करते हैं अक्सर
आज मैं कुछ बात आपसे करूं, कोई ऐसी नई बात, तो पुलिस ऑफिसर्स वुड से कि सर इसकी हमें जरूरत नहीं, इसके बगैर भी हमारा काम चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, और आज से नहीं चल रहा, 20 साल 50 साल से चल रहा है। सो क्या जरूरत है इस चक्कर में पड़ने की? तो मैं उनसे ये कहूंगा कि आज से 20 साल पहले आप अपनी आप मैं आजकल जैसे इन्वेस्टिगेशन में हूँ, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कहूँ, इसमें कई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी हैं इस टीम में, इस ऑडियंस में, को मैं कहूँ कि आज से 20 साल 25 साल पहले आप जब क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते थे तो क्या वही सारे टूल्स यूज करते थे जो आज यूज करते हो? तो जवाब होगा नहीं। इसमें बहुत सारे नए टूल्स ऐड हो गए, टेक्नोलॉजी ऐड हो गई है, सेलुलर डेटा ऐड हो गया है, इसके अंदर इंटरनेट ऐड हो गया है, बहुत सारी और चीजें ऐड हो गई हैं, सीसीटीवी ऐड हो गई है। तो इसी तरीके से हर फील्ड में, ये तो एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की फील्ड है, इसी तरह हर फील्ड में नई एडवांसमेंट्स हो रही हैं। मेरे ख्याल पे हम जब ऐसी किसी ट्रेनिंग से गुजरते हैं तो हम उन एडवांसमेंट्स को सीख लेते हैं, उनको समझ लेते हैं, तो उससे हमें उन टूल्स को भी ऐसी सिचुएशन सामने आने पे यूज करने में फायदा होता है। सो दिस इज ऑल व्हाट दिस ट्रेनिंग इज अबाउट। और मेरे ख्याल में मुआज साहब को मैं कहूँगा कि आप एक दफ़ा जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी एक इंट्रोडक्शन का राउंड कर लें, ताकि उनका पता चले कि कौन कौन इस वक्त ऑनलाइन है, कौन कौन यहाँ पर शामिल है। और उसमें ज़्यादा बेहतर होगा कि वो ऑफिसर तमाम अपना नाम बताएं और अपना रैंक बताएं और कहाँ पोस्टेड हैं वो बताएं, और जो बातें मैंने अभी की हैं उनके हवाले से अगर टाइम हमें अलाउ करता है तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग के ऊपर भी बात शुरू करें अपने पार्टिसिपेंट्स से। आई डोंट नो आज का सेशन में अब कितना टाइम बाकी है, ये 30 मिनट्स बाकी हैं, बट हमें एक पोस्ट असेसमेंट भी करना होगा, अच्छा। आई मीन सॉरी प्री असेसमेंट करना होगा, और उसमें असल में हम एक राउंड इंट्रोडक्शन तो आई थिंक हो जाए, ये तो आई थिंक आपके पास चलें ठीक एटलीस्ट है। बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए कि अपना नाम बता दें, रैंक और कहाँ पोस्टेड हैं वो बता दें, तो ये एक बेसिक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन हो जाए। उसके बाद जो आप टेक्निकल साइड से इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे वो कर लें। दिस इज ऑल फ्रॉम मी फॉर द इंट्रोडक्टरी सेशन। Thank you so much, sir. And then we'll open for brief questions if there are any towards the end. But if I will go ahead and select through the chart here, हमारे पास एक AJK से Adil साहब है. Would you like to give an introduction, sir? Raja Adil Hussain here. I am Sub Inspector from Neelam District, Azad Jammu and Kashmir. Presently, I am working as a Sub Inspector Chowki Officer, District Neelam. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Javed Chauhan, Inspector Legal. I am posting at Central Police Office, Muzaffarabad, AGK. I am in charge CIA, Rawalakot. I'm Sub Inspector, sir. I have experience with serving with United Nations also. I've served in Darfur, Sudan, and I'm really looking forward for this, course, sir. I just checked the modules, and I'm really interested about this media handling, sir. So I'm really looking forward about this course, and I really appreciate your efforts. Thank you very much. Assalamu alaikum. I am Tariq Mehmood, DSP here in Azad Police. I am serving here in Mirpur. Assalamu alaikum, sir. I am ASI Yasif Ali Tunio, now present posting at PS Qaidabad District Madir, Karachi. I am Altaf Khan from Karachi Police. I am posted at the SIU Happy Market, District Central, Investigation Central 2. Oh, okay. So here we have a District Central as well. My name is Naveedul Hassan, Sub Inspector District Muzaffarabad. Presently serving as a District SHO PS Purity Dupatta, District Muzaffarabad. I am Sub Inspector Akhlaq Ahmed Khan. Last 2 days ago, I was SHO Pakistan Bazar. Now I am going to performing Umrah for ex-Pakistan leave and also joining your session. Yes, sir. Assalamu alaikum. I am Afroz Solangi and I am posted in Karachi East Headquarters. Assalamu alaikum. My name is Sayyid Asghar Ali Shah. I am Sub Inspector and I am posted at Special Investigation Unit CIA Karachi. Thank you, sir. Inspector Zubairul Islam Siddiqui. इस वक्त मैं SSP City District South Zone Karachi में पोस्ट हूँ. Again, a very warm welcome to everybody from Sindh Police and from AJK who have joined us for this session. और इंशाल्लाह ये आपका सेशन जो है beneficial रहेगा. I mean, one of the things मैं आपको इतना बता दूं कि मैं खुद एक सर्टिफाइड मीडिएटर हूँ, वकील हूँ, पढ़ाता भी हूँ,
और जो मीडिएशन का जो एक तरीक़ेकार है वो बिल्कुल नेगोशिएशन के साथ मिलता जुलता है. Of course, criminal negotiation, crisis negotiation is a little bit intensive, but the same principles are there, trying to de-escalate a situation and bring about a peaceful solution. और ये हमारी priority होनी चाहिए as वकला, as judges, anybody who's working in the criminal justice sector, to try to bring conflict resolution solution उसका जो है बड़ा एक peaceful तरीके से करें. तो ये crisis negotiation is an element of within that framework of dispute resolution. And without further ado, I'm going to hand the floor to Furqan, who will then share his screen and share with you the interface. And उसके बाद आखिर में कोई सवाल जवाब है तो हम pre-assessment के test भी कर लेंगे, and then we can catch each other tomorrow, inshallah. Thank you so very much, Mr. Moaz. Welcome आप सब लोगों को. We are excited कि सेशन हमारा जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर्ली शुरू हो चुकी है. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो माइक को ऑन और ऑफ करने का जो तरीकाकार है वो आप जैसा आपने कैमरा अपना खोला है उसी के बराबर में छोटा सा माइक बना हुआ होता है. उसके ऊपर अगर एक लाइन आ रही है तो इसका मतलब आपका माइक बंद है. उसको खोलने के लिए आपको उस पर दोबारा टैप करना पड़ेगा और फिर आपका माइक खुल जाएगा. एक छोटी सी एक ट्रिक है. कंटिन्यू करते हैं हम आज के अपने adil.com.pk पे लॉगिन होने के तरीके को. मैं आपको सारी चीज़ें जल्दी से क्विकली ओवरव्यू दे देता हूँ. ठीक है, adil.com ये जो एक प्लेटफॉर्म है इसके ज़रिए आप इन सेशंस में लॉगिन कर सकते हैं. ये जो सेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं आप इनकी रिकॉर्डिंग्स को रीच आउट कर सकते हैं. इसके अंदर जो आपको इस कोर्स के दौरान आपको जो असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, जो आपके साथ सर्वेज फिल करवाए जाएंगे, वो सारे भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेंगे. इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम अपने पास खोलना है, अगर आप मोबाइल पे हैं तब भी और लैपटॉप पर तब भी, और इवन इट्स कंप्यूटर पर भी. adil.com.pk आप लिखेंगे, वो आपको इस पेज पे लाएगा एंड देन आप डायरेक्टली जाएंगे लॉगिन और रजिस्टर पे. इससे पहले आप यहाँ पे अगर छोटा मोटा अगर आपको अदल के बारे में पढ़ना है कि अदल क्या है, इसके अंदर क्या क्या कोर्सेज हैं, तो ये सारा आपके पास सामने पेज पर है, जिसको अगर आप इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं. सामने आपके पास उर्दू का ऑप्शन है और ये सारा उर्दू में ट्रांसलेट हो जाता है. ठीक है, बैक टू इंग्लिश और हम चलते हैं लॉगिन करने के तरीके के ऊपर. लॉगिन मैं करता हूँ क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे अभी डायरेक्ट लिंक को ज्वाइन करके भी आए हुए हैं ना, तो इसलिए ये वाला हम प्रोसेस एक दफ़ा देख लेते हैं. मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम लिखूंगा. आप लोगों के यूज़र नेम्स आप लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं ऑलरेडी. ओके, अगर आप लोगों को अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ढूंढने में कोई भी परेशानी होती है तो मुझसे डायरेक्ट पूछें, मैं आप लोगों को आपका यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड कर दूंगा. जब भी आप पहली दफ़ा लॉगिन कर रहे हो तो यहाँ पे एक दफ़ा रिमेंबर का कर दें, ताकि फिर आपको बार बार अपना लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड डालने की ज़रूरत ना पड़े. इसको हम लॉगिन कर देते हैं. ये लॉगिन होते ही आपके पास सामने डैशबोर्ड खुल जाता है. डैशबोर्ड से मुराद ये है कि आपके पास जो जो कोर्सेज होंगे वो सारे के सारे आपके पास इस डैशबोर्ड में नजर आ रहे होंगे. अभी चूंकि हम जिस कोर्स की बात कर रहे हैं उसका नाम क्राइसिस नेगोशिएशन है, मैं क्राइसिस नेगोशिएशन पर आऊंगा. यहाँ पे व्यू खुल जाता है, तो जब मैं व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो फिर ये मुझे इस कोर्स के अंदर ले जाएगा. अगर आपको इस पेज के बारे में जानना है कि इस पेज को कैसे रन करना है तो आप लोग इस टूर को इस्तेमाल कर सकते हैं. बाकी देयर इज नो नीड. जैसे कि बताया गया है कि हमारे साथ 6 मॉड्यूल्स होंगे. हर मॉड्यूल के साथ साथ हर मॉड्यूल खुलता जाएगा. अभी चूंकि हम मॉड्यूल 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मॉड्यूल 1 खुला हुआ है. जब मॉड्यूल 1 खत्म हो जाएगा तो मॉड्यूल 1 यहाँ पे बंद हो जाएगा, मॉड्यूल 2 खुल जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मॉड्यूल 1 को दोबारा एक्सेस नहीं कर सकते. जब आप मॉड्यूल 1 पर आके क्लिक करेंगे तो मॉड्यूल 1 दोबारा खुल जाएगा, बट स्टिल हम अभी मॉड्यूल 1 की बात कर रहे हैं. लाइव सेशन में आने के लिए एक तो ये कि आपके पास जूम होना माइक्रोसॉफ्ट टीम्स होना आपके पास जरूरी है. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अगर आपको अपनी डिवाइस में डाउनलोड करने में मुश्किल हो रही है तो मुझे बता दें, मैं आप लोगों को लिंक्स फॉरवर्ड कर दूंगा जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अपने पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स डाउनलोड कर सकते हैं. लाइव सेशन में आने के लिए बहुत आसान सा तरीका है. जैसे ही अभी जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप यहाँ पे लाइव सेशंस में आएंगे. जब आप क्लिक हियर करेंगे तो आपको डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के जरिए इस सेशन के अंदर ले आएगा. ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई बात लाइव सेशन तक आने की. इसके बाद हमारे पास आता है सर्वे. जैसे आपको बताया था एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस. एसिंक्रोनस जो है वो ये सारे कोर्सेज हैं, हमारे मॉड्यूल्स हैं. मॉड्यूल्स से मुराद हमारे चैप्टर्स हैं.
और एसिंक्रोनस जो है वो ये है हमारे सर्वेज एंड इवैल्यूएशंस। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं हमारे प्री ट्रेनिंग सर्वे की, जो हमें अभी फिल करना है और आप लोगों ने भी फिल करना है। तो ये प्रोसेस जो है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्योंकि अभी आप लोगों को ये सारा दोबारा से फॉलो करना है अपने खुद के पास। सर्वे का जो मकसद है, सर्वे का मकसद ये है कि आप लोगों से 2 फिल करवाए जाएंगे इस प्रोग्राम के हवाले से, इस स्पेसिफिक कोर्स के हवाले से। एक प्री ट्रेनिंग सर्वे होगा, एक पोस्ट ट्रेनिंग सर्वे होगा। दोनों का मकसद ये है कि आपको पता हो कि कोर्स से पहले आपकी कितनी लर्निंग थी और कोर्स के बाद आपकी खुद की कितनी लर्निंग हुई है। तो ये सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी होता है एक तरह का। प्री असेसमेंट सर्वे को फिल करने का तरीकेकार होगा कि आप यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा अटेम्प्ट्स अलाउड 1 और टाइम लिमिट जो आ रही होगी आपके पास सिर्फ 30 मिनट की आपके पास टाइम लिमिट आ रही होगी। ठीक है, आप सिर्फ एक ही दफा इसको अटेम्प्ट कर सकते हो और आपको 30 मिनट के अंदर अंदर इसको अटेम्प्ट करना है। मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू लास्ट अटेम्प्ट करूंगा। आपके पास यहाँ पे अटेम्प्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, जैसे मेरे पास कंटिन्यू लास्ट अटेम्प्ट आ रहा है, आपके पास भी इसी तरह का ऑप्शन आ रहा होगा। मैं यहाँ पे कंटिन्यू लास्ट अटेम्प्ट कर देता हूँ, ये मुझे ले जाएगा जहाँ पे मैं लास्ट टाइम रोका था। अब यहाँ पे आ जाते हैं ये सारे सवालात। ठीक है, अगर आपको ये सवालात उर्दू में चाहिए तो आप शुरू से जो आपका होम पेज था जहाँ से मैंने आपको उर्दू में जाने का तरीका बताया है, तो आप वहाँ से उर्दू में अपने पेज को, पूरे अदल को आप उर्दू में ट्रांसलेट करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे ये सवालात हैं ये सारे आपके पास उर्दू में खुलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपने ऑप्शंस चूज करेंगे। मैंने ऑप्शन चूज कर लिया। यहाँ पे जैसे सामने सवाल लिखा है, चूज द करेक्ट क्राइसिस इंसिडेंट टाइप ऑफ सियालकोट जेल सिचुएशन 2003। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो लगता है जो भी सही जवाब है मैं उस जवाब को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे उसको चेक कर दूंगा एंड देन मैं दूसरे सवाल पर आऊंगा। ऐसे ही ये प्रोसेस मैं सारे सवालात के लिए रखूंगा। यहाँ पे तकरीबन कोई 35 क्वेश्चंस हैं जो कि जस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। आपको सिर्फ चूज करना है कि क्या सही है क्या गलत है, किस चीज के बारे में आप एग्री करते हैं, किस चीज के बारे में आप डिसएग्री करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक सवाल है यस और नो के भी। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है, यस, मे बी, नो, नॉट श्योर। तो इस तरह के सवालात हैं 35। जब आप इन सबके जवाब दे देंगे तो फिर आप यहाँ पर आके फिनिश अटेम्प्ट कर देंगे। जब फिनिश अटेम्प्ट हो जाएगा तो ये मुझे सर्वे का मेरा स्टेटस बता देगा कि समरी ऑफ अटेम्प्ट। ठीक है, मेरे पास समरी आ जाएगी मेरे अटेम्प्ट की और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा सबमिट ऑल एंड फिनिश। पीछे मेरे पास समरी आ गई, मैंने यहाँ पे सबमिट ऑल एंड फिनिश कर दिया है। अब ये मुझसे कंफर्मेशन लेगा कि क्या मैं करना चाहता हूँ इसको सबमिट ऑल, तो मैं बोलूंगा यस सबमिट ऑल एंड फिनिश। और ये जो मेरा सर्वे है ये मेरा सर्वे फिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बता रहा होगा नो मोर अटेम्प्ट्स अलाउड, क्योंकि मेरे पास एक ही अटेम्प्ट था। यहाँ पे मेरे पास स्टेटस आ गया है कि फिनिश्ड सर्वे, सर्वे इज फिनिश्ड। मैंने कब सबमिट करवाया है, मंडे 28 मार्च 2022 7:45 पे मैंने सर्वे सबमिट करवा दिया है। नो मोर अटेम्प्ट्स अलाउड, क्योंकि एक ही अटेम्प्ट था। 30 मिनट के अंदर अंदर आपको ये सर्वे फिल करना है। अच्छा, इसके अलावा बात करते हैं असाइनमेंट्स की। असाइनमेंट्स को सबमिट करवाने का तरीकेकार क्या है। अभी जो आपके पास ये चैप्टर है मॉड्यूल 1, इसमें एज सच कोई असाइनमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको तरीकेकार बता देता हूँ कि असाइनमेंट को सबमिट करवाने का तरीकेकार क्या है। इसी तरह से आप उसी कोर्स के अंदर जाएंगे, आपके पास एसिंक्रोनस आ रहा होगा। एसिंक्रोनस में जैसे अभी सर्वेज एंड इवैल्यूएशन आ रहा है, उसी के साथ साथ आपके पास नीचे सेशन रिकॉर्डिंग भी आ रहा होगा, असाइनमेंट्स भी आ रहा होगा, पॉडकास्ट भी आ रहा होगा। सेशन रिकॉर्डिंग से मुराद ये है कि ये जो अभी हमारे पास सेशन हो रहा है यहाँ पे इस वक्त, ये पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप लोगों का इंटरनेट का इश्यू होता है और बहुत सारी चीजें आपकी मिस हो जाती हैं, तो वो सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, हम एक दिन बाद हर सेशन के अगले दिन या उसके एक दिन बाद हम रिकॉर्डिंग इस पे अपलोड कर देते हैं। तो आपकी जो भी चीजें मिस हुई हैं वो आप इस सेशन रिकॉर्डिंग में जाके उस सेशन को एक्सेस कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी क्या चीजें मिस हुई हैं। बात करते हैं असाइनमेंट्स की, तो मैं यहाँ पे खोलूंगा असाइनमेंट्स। सामने हमारे असाइनमेंट्स होंगे, तो जो भी असाइनमेंट का नाम होगा वो असाइनमेंट यहाँ पे अपलोड होगा ऑलरेडी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे असाइनमेंट है, असाइनमेंट लिस्ट ऑफ मोटिवेशंस। यहाँ पे मैं जाऊंगा, मैं यहाँ पे असाइनमेंट को डाउनलोड करूंगा और मैं इसको सेव करूंगा। ठीक है, असाइनमेंट में खोलता हूँ और जैसे असाइनमेंट है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको मैं, लेकिन पहले करूंगा एनेबल एडिटिंग, क्योंकि आपको एडिटिंग हमेशा एनेबल करनी पड़ेगी।
यस आई ओके। वर्ड की स्क्रीन असल में क्यों नहीं आ रही वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने वो स्क्रीन शेयर नहीं की हुई। एक सेकंड मुझे दें। ओके जस्ट अ सेकंड। ओके सो या ये जैसे मैंने असाइनमेंट अभी डाउनलोड की थी, ये वाली फाइल मैंने डाउनलोड की थी जिसका नाम था लिस्ट ऑफ मोटिवेशंस। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको इनेबल एडिटिंग किया। इनेबल एडिटिंग आपको हमेशा करना पड़ेगा अगर आप लैपटॉप से भी कर रहे हैं और मोबाइल से भी कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपनी लिस्ट में जो भी मेरा जवाब है यहाँ पे मैंने अपना लग दिया, बिकॉज आई वांट टू लर्न मोर। ये मेरी मोटिवेशन है 1 ऑफ 10। ठीक है, मैंने लग दिया बिकॉज आई वांट टू लर्न मोर। ये मैंने फाइल सेव की, इस फाइल को मैं करता हूँ सेव एज और डेस्कटॉप पे जाके मैं सेव कर लूंगा। आप लोग अपनी फाइल को किसी भी लोकेशन पे जाके सेव कर सकते हैं, जो लोकेशन आप लोगों के लिए बिल्कुल इजीली एक्सेसिबल हो। ठीक है, अब मैं दोबारा से अपने उस पर आऊंगा LMS पे जहाँ पे अदल से हम लोगों ने शुरू किया था। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ मेक अ सबमिशन। ठीक है, जब मैं यहाँ पे मेक अ सबमिशन पे जाके क्लिक करूंगा इस ऑरेंज जो बटन है इसके ऊपर, तो सामने मुझे फाइल पे ले जाएगा। वहां पे मुझे बस फाइल अटैच करनी है अपनी और उसको मुझे कर देना है सबमिट। ठीक है, तो ऐसे आपका असाइनमेंट जो है वो सबमिट हो जाएगा। बैक टू आवर होम पेज। अच्छा, इसमें पॉडकास्ट का भी आपने देखा था, एक एसिंक्रोनस में पॉडकास्ट भी है असाइनमेंट्स के नीचे। पॉडकास्ट से मुराद ये है कि कुछ टॉक्स होंगी, कुछ स्पेशलिस्ट के साथ टॉक्स होंगी जिनके जरिए शायद आपको असाइनमेंट्स भी मिलें। आपको वो टॉक सुननी हो पहले असाइनमेंट को कंप्लीट करने से पहले। ठीक है, तो आप लोगों को वो पॉडकास्ट इस पॉडकास्ट वाले फोल्डर में आके मिलेंगी। सो आई बिलीव दिस वाज ऑल फॉर द अदल। इस पूरे प्लेटफॉर्म का छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आप लोगों से गुजारिश है कि अभी जो मैंने आपको सर्वे फिल करने का तरीकाकार बताया है, आप लोग अपने अपने यूजर नेम ID पासवर्ड्स के साथ लॉगिन करें adal.com.pk पे, और जो आप लोगों से मैंने सर्वे की बात की है उस सर्वे को काइंडली जाके फिल करें। मैं एक दफ़ा फिर से आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ही आप अपने होम पेज पर आएंगे तो आप डैशबोर्ड पे आते ही आपके पास सामने क्राइसिस नेगोशिएशन आ रहा होगा। सामने जब आप क्राइसिस नेगोशिएशन खोलेंगे तो आपके पास आ जाएगा। आप नीचे आएंगे एसिंक्रोनस में आएंगे तो सामने आपके पास सिर्फ सर्वे है। सर्वे को जो आप खोलेंगे प्री ट्रेनिंग सर्वे को, यहाँ पे आके आप अपना सर्वे का अटेम्प्ट दे सकते हैं। यहाँ पे भी नो मोर अटेम्प्ट्स अलाउड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे इससे पहले एक ऑप्शन आ रहा था जो आपके पास भी आएगा। उसको जब आप खोलेंगे तो आपके पास सर्वे खुल जाएगा। तो काइंडली ये सर्वे आप लोग अभी फिल करें। इसके अलावा मेरे पास एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। वो अनाउंसमेंट ये है कि कल से जो हमारे सेशंस होंगे, आज तो हम लोगों ने शुरू किया था 6 बजे से 8 बजे तक, राइट। उसमें बहुत सारा टाइम लगा, क्या बहुत सारे लोग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे तो इट टुक टाइम। लेकिन आई बिलीव कि कल से हम अपना सेशन टाइमली शुरू करेंगे। लेकिन जो प्रॉपर टाइम होगा हमारे सेशन का, कल मगरिब की नमाज के फौरन बाद, लाइक 7:05 7:10 तक नमाज का एंड होता है, तो हम सेशन का शुरुआत करेंगे 7:30 बजे। ठीक है, 7:30 बजे कल हमारा सेशन शुरू होगा और सेशन जो हमारा एंड होगा वो होगा 10:30 बजे। तो 3 घंटे का सेशन होगा। इसको हमने असल में एक्सटेंड इसलिए किया है क्योंकि ताकि रमजानों में आप लोगों को टाइम ज्यादा हम आपका कंज्यूम ना कर पाए, आप लोगों के पास इनफ टाइम हो कि आप लोग रमजानों में फ्री हो। इसलिए बस थोड़ा सा हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इस थ्रू आउट वीक। और कल से जो हमारी क्लासेस होंगी, कल से जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो 7:30 to 10:30, 7:30 बजे से 10:30 बजे तक होंगे। सो ये एक छोटी सी टाइमिंग की अनाउंसमेंट थी। ये अनाउंसमेंट मैं ग्रुप पे भी छोड़ दूंगा ताकि आप लोगों को याद रहे। इसके अलावा कोई भी टेक्निकल इशू, किसी भी हवाले से आप लोगों को परेशानी हो, असाइनमेंट सबमिशन के हवाले से परेशानी हो, तो डू आस्क मी, मुझसे पूछें। लेकिन अभी जो ये हमारे सर्वे है पहला, ये हम चाहते हैं कि आप हमारे सामने ही फिल करें और हम आपको यहाँ पे स्टेटस बताते जाएं उसका कि किस किसने फिल कर दिया है। तो काइंडली आप लोग अपने पास लॉग इन करें और सर्वे जो है उसको फिल करना शुरू कर दें। थैंक यू। आप लोगों की लॉगिन आईडी सारी आप लोगों से शेयर की गई हैं, तो उनके थ्रू लॉगिन हुए।
अपने adil.com.pk के ऊपर यूजर नेम एंड पासवर्ड के साथ जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो सामने आपके डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड में आपके सामने कोर्स आ रहा होगा। अगर सामने रिसेंटली एक्सेस कोर्सेज में नहीं आ रहा तो यहाँ पे कोर्सेज में आ रहा होगा। उससे नीचे क्राइसिस नेगोशिएशन स्ट्रेटेजिक, इसको हम व्यू करेंगे। जब हम इसको व्यू कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे नीचे पेज पर ले आता है जो कि हमारे सामने पूरा कोर्स खोल देता है क्राइसिस नेगोशिएशन स्ट्रेटेजिक्स का। स्ट्रेटेजिक में जब हम नीचे आएंगे, इसी कोर्स में जब हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड सबसे नीचे आके एसिंक्रोनस टूल्स में आएंगे। एसिंक्रोनस टूल्स में हमारे सामने है सर्वेज एंड इवैल्यूएशंस। ठीक है, इसमें हम ये वाला सर्वे खोलेंगे, फ्री ट्रेनिंग सर्वे, जो कि अभी खोलना है, हमें खोलेंगे नहीं, खोल रहे हैं। ये जब सामने खुल जाएगा तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा अटेम्प्ट द सर्वे का। ठीक है, ये आप देखें, यहाँ पे जाके आप कोर्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अभी कोशिश करें, क्योंकि अभी आपके पास कोई भी सवाल होगा तो फिर उसको हम अभी एड्रेस करने में ज्यादा आसानी होगी बनिस्बत फिर बाद में मैं एड्रेस कर रहा हूँ। तो अभी सामने आप लोगों को जो भी मुश्किल हो रही होगी वो बताएं और इसको अटेम्प्ट करें। अभी तक मेरे पास वन अटेम्प्ट, मेरे पास अभी तक कितनी अटेम्प्ट्स आ रही हैं? मेरे पास एक भी अटेम्प्ट्स नहीं आ रही है क्योंकि किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया। तो काइंडली ट्राई अटेम्प्टिंग। मैं वैसे सेशन को गो अहेड इन क्लोज करता हूँ इस लिहाज से, लेकिन आप प्लीज कनेक्टेड रहिए। आप अगर एज यू फिनिश दिस आउट, फुरकान इज गोइंग टू बी हियर टू फिनिश आउट। मेरी तरफ से तो मैं आपसे इजाज़त लूँगा और आई थिंक अगर आरिफ साहब भी हैं तो वो भी अगर कुछ कहना चाहें एज फाइनल वर्ड्स एंड देन फिर आप कंटिन्यू कर लें। फुरकान लाइक आई सेड विल बी हियर, कनेक्टेड रहे और कोई सवाल होगा तो आपको गाइड करते रहेंगे इंशाल्लाह। टुमारो फुरकान विल पोस्ट स्केड्यूल। जी बिल्कुल ठीक है मुआज़ साहब, थैंक यू। और मेरा ख्याल है ये आज की इंट्रोडक्टरी सेशन के लिए अच्छी डिस्कशन रही है। टुमारो एट 7:30 जैसे फुरकान साहब ने कहा है तो वी वुड मीट अप अगेन। और उससे पहले फुरकान, आप जो टेक्निकल हिचेस आ रहे हैं कुछ लोगों को, वो ज़रूर रिजॉल्व कर लें तो अच्छा रहेगा, ताकि कल तमाम लोग जो हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ इसमें शामिल हों। थैंक यू वेरी मच। और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो फिनिश कर रहे हैं अपने असेसमेंट्स, व्हेन दे फिनिश दे कैन गो अहेड एंड लीव द सेशन एज वेल। तो इंशाल्लाह मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड इंशाल्लाह सी एवरीबॉडी टुमारो। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।